Hello students, how are you? Before going ahead, I would like to revise previous work. In last session, we have studied what is computer and its uses, classification of computer on the basis of purpose, component and data use, and unit of binary codes. Let us continue chapter types of computer. As you know, we are using fifth generation computer. Fifth generation computers are categorized on the basis of size, efficiency, storage capacity and number of user can do work at the same time. फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर को जो कैटेगराइज किया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोसेसिंग स्पीड और उनके साइज, साथ में उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग उस पर काम कर सकते हैं और वो किस तरह उनकी वर्किंग क्या है. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर कैटेगराइज्ड एज माइक्रो कंप्यूटर, पोर्टेबल कंप्यूटर, palm top computer and mini computer, mainframe computer, supercomputer. Microcomputer. Microcomputer is also known as personal computer, PC or desktop computer as they fit normally on business desk. These computers called microcomputer because of its size and it uses microprocessor which is a very small electronic device. Microcomputers को हम लोग पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी बोलते हैं. ये कंप्यूटर माइक्रो बोले जाते हैं बिकॉज ऑफ द साइज. इनका साइज स्मॉल होता है और इनके अंदर जो प्रोसेसर यूज होता है वो माइक्रो होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इसलिए इनको हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं. दीज कंप्यूटर जनरली एट होम और फॉर द बिजनेस पर्पज यूज किए जाते हैं. मेन फीचर ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज ALU, memory unit and control unit is on the same chip, that is called as microprocessor. The first microprocessor was built on 8-bit, slowly modified to the 16, then 32, 64. Bit number refers to the how much memory or a processor can access. Portable computer. These computers have same hardware and software as used in microcomputer. These computers designed to move easily from one place to another. पोर्टेबल कंप्यूटर्स हैंडी से होते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह इनको इजीली ले जा सकते हैं. इसके बाद भी, इतने हैंडी होने के बावजूद भी, ये कंप्यूटर्स के अंदर जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है माइक्रो कंप्यूटर वाला ही होता है एंड दे आर एबल टू डू each and every work that microcomputer can do. Example of portable computer is notepad, laptop, tablets, etc. Palm top computer. Palm top computers contain considerable computing power and have strong battery backup. They are small enough to be held in the palm of one hand. पाम टॉप कंप्यूटर जैसे कि इनके नाम से क्लियर हो रहा है, आपकी पाम के अंदर आराम से फिट हो जाते हैं एंड इनके अंदर अच्छा बैटरी बैकअप होता है. आप आराम से इस पर, और इसकी कंप्यूटिंग पावर भी अच्छी होती है, आराम से आप इसके ऊपर काम कर सकते हो एंड ऑलमोस्ट कंप्यूटर के काफ़ी सारे फंक्शंस इसके अंदर होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ पाम टॉप कंप्यूटर इज मोबाइल फोन्स एंड आईपैड एसेट्रा. Mini computer. These computers are more powerful than microcomputer. Storage capacity, processing speed is higher than microcomputer. More than one user can do work at the same time. These computers are used as server to process large amount of data in an organization. These computers used as server in LAN. मिनी कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं. इनकी स्टोरेज कैपेसिटी, इनकी
इनकी प्रोसेसिंग स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर पे मोर देन वन पर्सन एक टाइम पे काम कर सकते हैं और माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स को हम लोग एज ए सर्वर लैन में यूज़ करते हैं। Mainframe computer. These computers are more powerful than mini computer. Speed is very high. It is multi-user. That is, more than one person can do work at the same time. It is used controlling node in wide area network. Example of mainframe computer is IBM 2, IBM 3000, etc. मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये हमारे वैन में वाइड एरिया नेटवर्क में एज ए सर्वर यूज़ किए जाते हैं। Mainframe computer. These computers are more powerful than mini computer. Speed is very high. It is multi-user. That is, more than one person can do work at the same time. It is used controlling node in wide area network. Example of mainframe computer is IBM 2, IBM 3000, etc. मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोसेसिंग स्पीड भी बहुत ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में। और जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं ये हमारे वैन में वाइड एरिया नेटवर्क में एज ए सर्वर यूज़ किए जाते हैं। As the name supercomputer specifies, these are most powerful computer. The supercomputer is the top of the heap in power and expenses. They are very expensive and process large amount of data very fast. Processing speed is very high. Supercomputer are the fastest computer because they use multiprocessing technique in which a given task is broken into a number of tasks which are processed by different processors. They are used for weather forecasting, biomedical researches in science and technology. Example of supercomputer are Cray 2, Cray XMP. Indian supercomputers are अनुराग एंड परम। सुपर कंप्यूटर जैसे कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है ये मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर हैं। इन सब कंप्यूटर के ऊपर सबसे ऊपर है और इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है बहुत हाई है। ये बहुत कॉस्टली भी है और जनरली ये रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। वेदर फोरकास्टिंग, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनमें यूज़ होते हैं। इंडियन सुपर कंप्यूटर्स जो फेमस है वो परम एंड अनुराग है। Characteristics of computer. What are the qualities of computer so that nowadays they are so much popular? We can't think work without computer. ऐसी क्या वजह है कंप्यूटर ने हमारी लाइफ को एकदम से चेंज कर दिया है? कंप्यूटर की कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर के बिना तो काम इतना फास्ट हो ही नहीं सकता, ये और इसके अंदर कुछ कमियां भी हैं। तो इसके अंदर कौन सी क्वालिटीज़ हैं? स्ट्रेंथ क्या है कंप्यूटर की? स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर्स आर स्पीड। स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज़ वेरी फास्ट एंड कैन परफॉर्म millions of calculation in a fraction of second. Speed of computer is measured in microsecond. Can you imagine? Microsecond is the 10 raised to power minus 6 equivalent to a 1 second. तो सोचिए आप एक सेकंड मिनट के अंदर कंप्यूटर कितनी सारी कैलकुलेशंस कर सकता है। कंप्यूटर कैन डू वर्क इन माइक्रो सेकेंड्स एंड नैनो सेकेंड। नैनो सेकेंड 10 रेज टू पावर 9 minus 9 seconds. Accuracy. Computer give 100% accurate result without error
एरर इन कंप्यूटर रिजल्ट आर ड्यू टू आर एरर। कंप्यूटर अपने आप से कभी भी गलती नहीं करता। अगर जो भी कुछ गलती कंप्यूटर कर रहा है ड्यू टू हमने रॉन्ग टाइप किया होगा या हमने डेटा फीड करने में कुछ ना कुछ गलती की होगी। डेलीजेंट कंप्यूटर वर्क एफिशिएंटली, इट मेक्स कॉम्प्लिकेटेड एंड repetitive tasks simple. Computer never tired. Computer can perform millions of calculations with same accuracy. अब ऐसे कि डेलीजेंस का हम लोग थोड़ी देर काम करने के बाद फेड अप होने लगते हैं, थकने लगते हैं, बट कंप्यूटर नेवर टायर्ड। कंप्यूटर कभी नहीं थकता और सेम एक्यूरेसी के साथ चाहे आप कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन एक के बाद एक उसमें करते जाएं आपको राइट आंसर्स मिलेंगे। जबकि हम लोग थोड़ी देर बाद फेड अप होने के बाद काफ़ी सारी गलतियां भी करने लग जाते हैं। वर्सेटिलिटी कंप्यूटर कैन डू अनलिमिटेड जॉब्स नाउ आप देखिए ईच एंड एवरी फील्ड में कंप्यूटर के बिना काम होता ही नहीं है और सोचते भी नहीं हम काम करेंगे। टू कीप द रिकॉर्ड्स, टू मेक द कैलकुलेशंस, टू मेक द बिलिंग, सब काम आजकल कंप्यूटर पे होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप लोग देख रहे हो आजकल लोग घर में बैठ के काम कर रहे हैं, आराम से सारे काम हो रहे हैं। नो नीड टू गो हियर एंड देयर। And power of remembering, storage capacity of computer is very high. It can store huge amount of data in a system. पहले फाइलें इतनी सारी संभाल के रखनी पड़ती थी ऑफिस वगैरह में। अब नो नीड टू डू ऑल दैट, नो नीड टू डू वेस्ट पेपर्स, सारा का सारा डेटा आपका एक सिस्टम के अंदर पड़ा रहता है। ये कंप्यूटर के अंदर है। बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। लॉजिकल डिसीजन, कंप्यूटर कैन कंपेयर टू थिंग्स, लॉजिकल डिसीजंस को हमें दे सकता है। इतनी सारी क्वालिटीज़ होने के बाद भी कंप्यूटर में कुछ कमियां भी हैं, जैसे कि नो आईक्यू। कंप्यूटर में कोई दिमाग नहीं है। कंप्यूटर का जो आप कहोगे जैसा का जैसा अपने तरफ से कंप्यूटर जरा सा भी कुछ नहीं कर सकता और रियलाइज नहीं कर सकता क्या सही है क्या गलत है। नो फीलिंग, कंप्यूटर के पास कोई फीलिंग नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है जिनसे वो अपना काम कर रखता है। नो ह्यूरिस्टिक, कंप्यूटर ह्यूरिस्टिक नहीं है, ये अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से कुछ भी नहीं सीखता। या कि जैसे अपन लोग अगर एक बार कोई गलती करेंगे तो हम सोचेंगे अगली बार ये गलती ना हो, या वही काम जब वापस हो रहा होता है तो हमें याद आ जाता है पिछली बार ये गलती हुई थी अब हमने नहीं करनी। बट कंप्यूटर को ऐसा कुछ नहीं है। मशीन, आफ्टर ऑल कंप्यूटर इज अ मशीन, और मशीन को मैकेनिकल प्रोसेस है, जैसे कहोगे वो काम करेगी। तो ये हमारे कंप्यूटर्स के अंदर वीकनेसेस हैं। This is all about this chapter. Now, once again, revision of the chapter, that computers are classified on the basis of generations, size and purpose. These are personal computer or microcomputer, mainframe computer, mini computer, supercomputer, portable computer, palm top computers. On the basis of working and data use, computers are classified into analog computer, digital computer and hybrid computer. Thank you. Have a nice day. Bye bye.